All right, Bismillah Rahman Rahim. So today we're going to talk about another type of question, and that is called note completion. Before this, we studied, uh, note completion, and today we are going to talk about table completion. Type of question, inshallah, we're going to talk about that is called table completion. So, table completion, it's a bit different from that of your note completion. If you remember in note completion, we dealt with clear with subheadings. In note completion type of questions, you remember that we studied that note completion type of question is the only type of question in IELTS reading that what will help you to identify the answer that of your subheadings. But in fact, in table completion, we do not have any subheadings, but in fact, table comes in a form of table. It comes in a form of table. Suppose if you read the instruction, clear the type of question, so it indicates that it's all about completing what table. So we call it table completion. And then you must focus on the word limit as I highlighted it. So how many words are required? Only one word is required. And after that, here you can identify the title. This is the title. And then can you see we have got a table. The information is in a form of table. For example, this is how like the table has been designed. Rows and columns. And what is important to initially focus more on, you must identify items. Suppose this is your first item. This is your first item. And for this item, Claire, you can you may find out number first, that's growth. Number two, selection. And number three, that's about sale. So three things I need to identify. And table completion type of question, always remember that we solve it horizontally in this way, not vertically. For example, first of all, I need to search for the growth. Second part, that is selection. And the third one, that is all about sale. So three clear different features I need to identify for what? Intensive farming. Once I'm done with the first growth part, selection, and the sale, and it comes in what? It comes in a proper order. First of all, I will find out growth, second part, that's selection, and the third part, sale. After that, you need to move to the second second item, and that is what we can have it, the second part, and that is aeroponic urban farming. So this is the second one. Again, the first part, it was for growth and then selection and sell. But in fact, we don't have any information for sell. These two parts we are looking for. So table completion type of question, they clear, you may find out the answers clear in one or two paragraphs because one answer depends on another. For example, if we take example for the first one, and that is growth. So if you find out growth, so you will find out clear quite next to, quite nearby, you may find selection and as well as sell. Then you will move to the next part. Now, initially, we want to identify the first part, and that is intensive farming, clear, versus aeroponic urban farming. So that's my title. So I can find out the first part, and that is called intensive farming. We have already studied that what is more important or where is more important than what. First of all, I need to find out that of the place, the location, and the location for what? Intensive farming. So can you identify, first of all, intensive farming? Can you search that in the first paragraph, intensive farming? Quickly search for intensive farming if you can find out. No? Second in the middle. Okay, can you find out here? Do we have? No? All right. No. It is intensively flavored. Intensively flavor and okay. No, that's about intensively flavored. And the question would we have, that is what? Intensive farming.
Versus. It talks about farming and it talks about flavored. So find out intensive farming. Can you find in this paragraph quickly? Not in the second. No? Okay, what about this? If you focus this paragraph now, Yeah, here. In the 4 lines, sir. which the fifth line? line. 5. Okay, here it comes intensive farming. Am I right? Yes, sir. Intensive farming is here. So you search for intensive farming and you find it out that yes, we can find out, Claire, our answer in this paragraph. So first of all, we search, Claire, quickly you are supposed to search for the correct location because where is more important than what? First of all, identify the location. Once you identify location, now I will move on, Claire, towards the question. The first part, it's about growth. What I'm looking, this portion, growth. First of all, there are two parts for the growth. Number one, they have already provided you. And what is that? Techniques polluted air. Okay, let me ask you a question. Do you remember technique parallel structure? Parallelism? Yeah. Okay, in parallelism, if you remember, I told you that we connect with the help of conjunction and, or, nor, as well as. Do you remember? Yeah. Okay, so parallelism, either you can list down something in a form of what? In you can write in a sentence, like for example, apples and dash. And you can also write down in this in bullet forms. Suppose apples and you write mangoes. Can you see? Again, it's parallelism because I don't write in a sentence. अब ये मैंने एक जुमले में नहीं लिखा. लेकिन can you see? I have mentioned it with bullet points, or you can write with 1, 2, 3. Do you understand? So same is the case here. Don't you think like again it's a type of parallelism? Number one, number two. So for growth, I need to find out 2 points. Number one, wide range of dash used, wide range of number one. And number two, techniques pollute air. Okay. Now, if you focus the question, Claire, and if I ask you about the strategy, which strategy is used here? Wide range of dash. What do you think? Strategies, we studied, Claire. So what do you think? What strategy applies here? Sentence structure. Structure. Okay. Any other strategies? Can you see wide range? So what comes in your mind when you read wide range? Different varieties. Anybody General, else? sir. Anybody else? Generalism, sir. General. Excellent. It's something general. Wide range. Wide range means number can be varied. So they have mentioned what? Wide range of. So instead of wide range, they can use specific number. For example, 15, 20, 30, 80. Do you understand? So now wide range of. So wide range of what? So now, first of all, we need to find out 2 points. Pollute air and wide range of dash used and growth. Let's start reading the paragraph. If you read the paragraph, Claire, and identify the first part, and that is called that of farming, intensive farming technique. What should I do? Like, the main topic what I read here, it's here. Do I need to keep reading after this that produce hair? Or may I refer to the previous sentence as well? What do you think? Sorry. Use this one, sir. What structure we need to use? Hello. Look, try to understand. First part, farming. Look, intensive farming. What should I do? क्या मैं इसके that produce them are such huge generator of greenhouse gases. मैं यहां से रीड करूं, इसके बाद रीड करूं, कहां से रीड करूं मैं जुमला? इससे पीछे सर। क्यों पीछे, क्यों आगे, क्यों नहीं? सर क्योंकि उधर वो the Because methods you all advantages are many, इसे कॉमा है सर। क्या है? कॉमा। देखिए हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपसे कहा था कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सपोज यू फाउंड इंटेंसिव फार्मिंग है, से स्टार्ट नहीं करना। तो इसके बाद आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना?
you start reading after this. That's not, देखिए जी, एक ही क्लास चल रही है, तो कौन दूसरा क्लास दे रहा है यहाँ पे? यहां से देखिए इंटेंसिव फार्मिंग। अब यहां पे देख रहे कामा है, तो इसका मतलब क्या है? दैट आई शुड नॉट स्टार्ट रीडिंग आफ्टर दिस, आई हैव टू रेफर बैक। तो मैं कहां पे रेफर कर सकता हूं? फुल स्टॉप यहां से है कि नहीं? The यहाँ पे फुल method. स्टॉप है ना? इससे पहले कोई फुल स्टॉप आपको नजर आ रहा है? नहीं। Yes. क्लियर? वी डोंट हैव एनी फुल स्टॉप। तो कम से कम आपने क्या करना है? यू नीड टू रेफर टू द प्रीवियस सेंटेंस. We want to say, I don't much like the fact that most of fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or, can you see? Or. Now, or. Parallelism. Parallelism शुरू हुआ ना यहां से, दो पार्ट से। Yeah. क्योंकि यहां पे मैंने क्या, पैरेललिज्म में आपके पास क्या और आएगा, एंड हो सकता है, ठीक है, एंड दैट कैन यू से एज वेल एज, ये हो सकता है ना? तो पैरेललिज्म। अब सबसे पहले इन लोगों ने एक हिस्सा यहां पे दिया हुआ है हमें जवाब, और that the intensive farming techniques that produce them are such huge generators of greenhouse gases. तो अगर आप फोकस करें, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इन लोगों ने क्या लिखा है यहां पे? टेक्निक्स पोल्यूट एयर, राइट? Yeah. Pollute air is more related to what? Huge generator of greenhouse gases. अब वहां पे Yes. देखिए कि इन लोगों ने जो लिखा था वाइड रेंज ऑफ, तो वाइड रेंज के लिए इन लोगों ने क्या लिखा है? Huge. वाइड रेंज ह्यूज हुआ। Different guess. वाइड No. ह्यूज लिख दूं मैं? No, sir. तो जवाब में मैं क्या यहाँ पे ग्रीन हाउस, वाइड रेंज ऑफ ग्रीन हाउस यूज लिख दूं? No. देखिए जी, अक्सर बच्चे क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं? मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो यहाँ पे वाइड रेंज लिखा है, तो बच्चे ये समझ रहे हैं कि भाई इट्स वाइड रेंज, तो वाइड रेंज का ह्यूज है, तो स्ट्रेट अवे दे विल राइट व्हाट? ग्रीन हाउस गैस। तो गलत है, No. क्योंकि आपसे मैंने क्या कहा? तो ये तो ग्रीन हाउस गैस, क्लियर, ये तो ऑलरेडी पोल्यूट एयर है, Yes, sir. तो ये तो इस जुमले के लिए आया। जाएंगे सर, अब वाइड पीछे रेंज के जाएंगे। लिए मैंने क्या कहा कि पैरेललिज्म में दो पॉइंट्स हो सकते हैं ना? ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स, नॉट अ सिंगल पॉइंट। There are 2 points that we look for, 2 points, not a single. So the first point is what? Wide range के लिए लोगों ने क्या लिखा है? 17 different. Yes, तो sir. 17 different क्या हुआ हमारे पास? वाइड रेंज हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे जनरल, तो यहाँ पे क्या है? जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन। और फिर यहाँ पे Yes, क्या आ sir. सकते हैं? पेस्टिसाइड्स। Pesticides. व्हाट कैन बी द राइट आंसर? पेस्टिसाइड्स। और आया और, तो इसका मतलब है ये और के बाद तो मेरा मतलब जवाब हो ही नहीं सकता। माय आंसर इज बिफोर Yes, sir. और, बिकॉज देयर आर 2 पॉइंट्स। डू यू अंडरस्टैंड? सो Yeah. द आंसर कैन बी पेस्टिसाइड्स। ओके, अब इसके बाद देखिए सिलेक्शन की बारी है। किस चीज की बारी है? सिलेक्शन। अच्छा जी, गुड क्वालिटी नॉट गुड, हमेशा याद रखे, हमेशा याद रखे, आइल्स वाले, आइल्स दे ऑलवेज ट्राई टू यूज बेसिक वर्ड एंड क्वेश्चन। जैसे यहां पे लिखे नॉट गुड, मतलब काफी बेसिक है कि नहीं है? अब इसे में हम इसे कहते हैं निगेशन। ये निगेशन है, नेगेटिव है गुड, तो गुड को इन लोगों ने नेगेटिव बनाया है। एम आई राइट? लेकिन आइल्स Yes. वाले क्या, व्हेन यू गो टू द पैसेज, पैसेज में आपको बेसिक वर्ड नहीं मिलेगा, वहां पे एकेडमिक वर्ड होगा, एंड दे विल ट्राई टू यूज व्हाट? हिडन निगेशन। हिडन क्या, कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? हिडन निगेशन। मतलब वर्ड मीनिंग नेगेटिव देगा, लेकिन वो हिडन होगा, मतलब आपको नजर नहीं आएगा कि किस चीज के बारे में। अब यहां पे देखिए इन लोगों ने क्या लिखा है? क्वालिटी नॉट गुड। सिलेक्शन में क्या लिखा है? क्वालिटी नॉट गुड। सो इफ यू जस्ट फोकस हियर एंड क्वालिटी, कौन सा, अच्छा ये पैराग्राफ है, यही है सर। यस। तो सिलेक्शन आया कि नहीं? यहां से आया ना? Yes. अच्छा, जो क्वालिटी नॉट गुड के लिए इन लोगों ने क्या अल्फाज लिखे? Varieties. Poor. Quality is so poor. Quality के लिए क्वालिटी सो variety. पुअर। एक्सेलेंट, Yes, sir. is so poor. एक्सेलेंट। अब पुअर क्या है? डोंट यू थिंक लाइक इट्स अ हिडन निगेशन, और ये इट्स मोर एकेडमिक वर्ड। Yeah. Exactly the same thing, like if you write in your writing essay not good, तो not good के लिए तो हमारे पास वर्ड है ना, poor। Yes. तो वो क्या आपसे स्पीकिंग राइटिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ट्राई टू यूज व्हाट? एन एकेडमिक वर्ड।
तो सवाल में अब हमेशा आइल्स वाले आपको वीक वर्ड, दे विल प्रोवाइड यू वीक वर्ड, बट व्हेन यू गो टू द पैसेज दे विल गिव यू व्हाट, हिडन नेगेशन। अब जैसे यहां पे अगर इन लोगों ने लिख दिया नॉट अलाउड, क्या लिखा? नॉट अलाउड। तो नॉट क्या है? नेगेटिव है कि नहीं? अलाउड पॉजिटिव है। तो पैसेज में अगर आप Yes. चले जाए तो पैसेज में आपको हिडन नेगेशन देगा, सही एकेडमिक वर्ड लाइक प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है? नॉट अलाउड। डू यू अंडरस्टैंड? Yeah. अच्छा, सो द फर्स्ट पॉइंट है वेराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल चोजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग। अब मुझे बताइए कौन सा स्ट्रेटेजी यहां पे यूज हो रहा है? Generalization. ओके Specification. ओके, और क्या? Where? अब सर्वाइव लॉन्ग, सर्वाइव लॉन्ग। अब सर्वाइव, सर्वाइव लॉन्ग क्या है यहां पे? व्हाट इज लॉन्ग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर? Adjective, sir. इट्स एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव नीड्स व्हाट? कॉलोकेशन की रूल एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा यहां पे? Noun, sir. नाउन। यस, नाउन। तो मतलब कैन सर्वाइव लॉन्ग Noun. डैश। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग के लिए क्या इस्तेमाल करना है? आई नीड टू फाइंड आउट सिनोनिम, एंड सर्वाइव के लिए मैंने सिनोनिम फॉर बोथ, सर्वाइव एंड बोथ ऑफ देम। देन एनीथिंग दैट कम्स आफ्टर एडजेक्टिव लॉन्ग, दैट कैन बी माय राइट आंसर। देन सपोज अब यहां पे देखे वेजिटेबल फ्रूट दैट चोजन क्लियर, लिखा है कि दैट सर्वाइव लॉन्ग। तो सर्वाइव लॉन्ग व्हाट? अब यहां पे देखिए वेराइटीज आर सेलेक्टेड फॉर देयर व्हाट, वेराइटीज। या इन लोगों ने क्या वहां पे, यहां पे स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल हुए कि नहीं? Yes. यहां पे इन लोगों ने क्या जनरलाइजेशन किया हुआ है कि नहीं? वेराइटीज आर सेलेक्टेड। तो यहां पे नाम नहीं लिखा, दे हैवंट रिटन क्लियर, दे हैवंट रिटन एनी नेम, वेराइटीज आर सेलेक्टेड। वेराइटीज कौन से यहां पे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेराइटीज है ना, Yes. आर selected for their capacity to withstand। तो अब withstand का मतलब क्या है? What do you mean by withstand? साथ रहना। Withstand mean to Long survive। time के लिए Yes, to survive, right? survive. Yes. अब long के लिए देखिए कि Yes, long sir. के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? ये journey का long के लिए No. कौन सा है? हाँ, Capacity. Substantial journey। substantial। Yeah. तो adjective है कि नहीं? substantial adjective है कि नहीं? Yes, sir। An adjective is followed by what? Noun। तो collocation rule के मुताबिक substantial के लिए मैंने word इस्तेमाल किया long। Substantial journeys, long journeys। So do you think like it makes sense? So the correct answer can be what? Journeys। Substantial journeys, long journeys। journeys. अच्छा, फिर यहां पे है dash will receive little। negation है कि नहीं इसमें? Do we have negation? Yeah. Little. Little, excellent, negation है यहां पर। receive very little of overall income। who receives very little? किसको Noun। मतलब काफी कम पैसे मिल रहे हैं? हम यहां पे नीचे आके and then we are going to search for that। कहां पे? all right, paragraph, let me select the paragraph। अच्छा अच्छा जी, तो अब इसमें देखें कि who receives little। रीड करिए पैराग्राफ, जर्नीज के बाद रीड करें। who receives very little? Wholesaler, sir। wholesaler receives the little। okay, anybody else? Producers। अच्छा, अब यहां पे देखिए, ऑलराइट, Uh, 80% of the total price I pay goes to whom? Wholesale। Oh, yes, sir। Sorry। wholesalers producer। and transport companies। तो इन दोनों को 80% मिल रहा है। कितना? तो इसमें मतलब ये है कि प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है? 20%। 20% less। और फिर वहां पे निगेशन था कि नहीं? लिटिल। लिटिल के लिए इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है? Not the। Not। so simply we can say producers। so the correct answer can be producers। ओके, फिर इसके बाद यहां पे ओके, एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग है, तो इन लोगों ने क्या लिखा है? नो सॉइल यूज्ड। निगेशन लिखा है कि नहीं? नेगेटिव, नो।
नो सॉइल यूज्ड। तो अब यहां पे आके ये क्या लिख रहा है? ग्रो यूज सॉइल फ्री मेथड। सॉइल फ्री मेथड। अच्छा, ये एकेडमिक है कि नहीं? नो सॉइल यूज्ड, सॉइल फ्री मेथड, कौन सा वाला ज्यादा एकेडमिक आपको लग रहा है? सॉइल फ्री Soil free मेथड। method. Soil free method. Soil free method. हमेशा याद रखिए कि आइल्स वाले आपको नेगेटिव्स के साथ, मतलब पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव बना रहे, लेकिन वहां पे हिडन नेगेशन आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एडेड टू वाटर व्हिच इज रिसाइकल्ड, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है ना, बट ये अगर आप देखना चाहते तो आप कर सकते हैं ना। स्मॉल क्वांटिटी एंड रिच विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, pumped around closed circuit of pipes to this towers and trays is produced up in here and sold locally just there. It is barely travels at all. He says you can select crop varieties. अब यहां पे देखिए, हम सिलेक्शन के पीछे जाएंगे ना। यहां पे we want to search what? Selection. Produce chosen because of its what? क्यों ये इन लोगों ने चूज किया? Because of what? रीजन क्या है इसका? अब इट्स क्या है? Its. What is its? Pronoun. It's possessive adjective. Its. प्रोनाउन इट हो सकते हैं, नॉट इट्स। जब भी आ जाए, जैसे कहे माय, तो माय क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। प्रोड्यूस चोजन बिकॉज ऑफ इट्स व्हाट। अब वापस आ जाए एंड यहां पे देखिए कि मतलब व्हाई दे हैव चोजन इट। पैराग्राफ हमारा कौन सी ये? अब यहां से यू कैन सेलेक्ट क्रॉप वेराइटीज फॉर देयर। इट्स के लिए लोगों ने क्या लिखा है? एडजेक्टिव इस्तेमाल किया कि नहीं? पोजेसिव एडजेक्टिव। वहां पे इट्स था, यहां पे देयर है। फॉर देयर व्हाट? Flavor. Flavor. Yeah. For their flavor. For Flavor. its flavor. So we simply Yes, write for down their what? flavor. Flavor. Flavor can be the right answer. Do you understand? Acha, let's Yes, take sir. another example. Am I visible? Yes, sir. Okay. Another. Okay. अच्छा, अब मैंने आप लोगों से पूछना है, ठीक है ना? आप सबसे मैं पूछूंगा अब। टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा है? Table. Table completion. And how many words are required? Only one. One. And this is study carried out by Rocha's team. ये क्या है? टाइटल है, सही है। अब सबसे पहले मैंने किस चीज को देखना है? एम। लेकिन एम में डू आई हैव एनीथिंग, एनी वर्ड टू फाइंड आउट, एनी ब्लैंक? नो। स्ट्रेट अवे मैं किस चीज की तरफ आऊंगा? मैथड। Method. Methods. तो मेथड में Method. मेरे पास काफी चीजें हैं। अच्छा, पहले वाला देखिए आप लोग। let me explain you another term here. आपको याद है कि when we studied about collocations, do you remember that? Yes, sir. Collocations. Collocation Yeah. में हमने क्या पढ़ा था? कि always focus words before and after the blank. यहां पे blank है तो focus words after and before, क्योंकि जो blank है either you will find the correct, it matches the word before that or after that. अब जैसे यहां पे बैट लिखा हुआ है कि नहीं? डैश बैट लिखा हुआ है। Yeah. Yes, तो sir. मतलब ये ब्लैंक किस चीज के साथ है? बैट के साथ है कि नहीं? Yes, sir. गुड। अच्छा, अब गौर से सुनना है आप लोगों ने और समझना है इस चीज को। दिस टेक्निक विल हेल्प यू इन बोथ लिसनिंग एंड रीडिंग, बोथ ऑफ देम। अब ब्लैंक से पहले Okay. यहां पे क्या लिखा है? बैट लिखा है कि नहीं? Yes, sir. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बैट के लिए क्या हमारे पास कोई सिनोनिम हो सकता है? Birds. नहीं, बैट के लिए कैन वी No. फाइंड एनी ये सिनोनिम फॉर noun दिस? है. तो Sir, नाउन है ये ना, noun प्रॉपर, सो वी कैन नॉट हैव इट। अब Yes, फरीद sir. साफी मेरा नाम है भाई, फरीद, तो मेरे लिए क्या सिनोनिम होगा? मेरे लिए तो कोई सिनोनिम नहीं है ना। Yes, sir. तो जब That हमेशा will याद be रखे, example. हमेशा याद रखे कि जब आपके पास कोई सिनोनिम ना हो, when there is no synonym before the blank or after a blank, if you want to use a word, तो इसमें आप ये मतलब ये इतने आसानी से तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। You won't find out your answer that much easily. They want to apply in this case a case, and that's called rearranging case. Rearranging method. Rearranging method. अब समझने की कोशिश करें, मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं तो उसे समझे आप लोग। पॉइंट नंबर 1, इफ फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं मॉडर्न डैश,
तो ये मॉडर्न जो है एडजेक्टिव है एंड डिश. सो अकॉर्डिंग टू कॉलोकेशन रूल आई कैन फाइंड आउट मॉडर्न. मॉडर्न के लिए आई कैन हैव सिनोनिम. दे कैन से स्टाइलिश, दे कैन से फैशनेबल, दे कैन से एडवांस. लेकिन अब बेड के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है. तो इस केस में क्या करना था कॉलोकेशन के रूल में? सबसे पहले आप लोगों ने मॉडर्न वर्ड के लिए सिनोनिम फाइंड करने. सिनोनिम के बाद जैसे आप लोगों ने अभी वहां पे लॉन्ग के लिए सब्सटेंशियल कर दिया ना, सब्सटेंशियल, और उसके बाद जो भी वर्ड था वो मेरा जवाब था. लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई वर्ड आ जाए कि जो जिसके लिए सिनोनिम ना हो, तो देन दे अप्लाई रीअरेंजिंग मेथड. फॉर एग्जांपल डैश मार्कर. तो मार्कर के लिए कोई सिनोनिम तो नहीं है ना मेरे पास. आई डोंट हैव एनी सिनोनिम फॉर मार्कर. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें जब आपको पता चले, व्हेन यू कम टू नो कि दे आई डोंट हैव एनी सिनोनिम फॉर द वर्ड, लेकिन ये वर्ड जो है इस मार्कर के साथ लिंक्ड है, तो ये रीअरेंजिंग मेथड अप्लाई करेंगे. अपने साथ नोट कर सकते हैं. रीअरेंजिंग मेथड क्या है? कि दे वांट टू स्प्लिट, दे वांट टू स्प्लिट वर्ड्स, Yes, दे sir. वांट टू स्प्लिट वर्ड्स. मतलब में अब देखिए यहां पे लिखे टीचर यूजेस मार्कर, marker made of plastic. Teacher uses, or teacher Claire uses marker made of what? Marker made of Made of plastic. तो अब मुझे बताइए, आप बताइए मुझे कि यहां पे मैंने जो लिख दिया, ठीक है, uses marker made of what? Plastic. तो जवाब में वहां पे क्या आ सकता है? यहां पे जो जवाब है उसमें क्या आएगा? Plastic. Plastic ना. marker. Plastic देखिए, आएगा. plastic marker means what? Marker made of plastic. ये उसकी Yes, sir. स्पेसिफिकेशन हो गई. तो ये इन लोगों ने क्या किया? स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग. देखिए, स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग. हाउ इज इट Combining. स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग? अब मैं लिखू यहां पे मार्कर मेड ऑफ प्लास्टिक. तो ये स्प्लिट हुआ कि नहीं? क्योंकि मार्कर एक जगह पे, प्लास्टिक इन अदर प्लेस. अगर मैं ये लिखू प्लास्टिक मार्कर, तो अब मुझे बताइए ये कंबाइन है कि नहीं दोनों वर्ड्स? Yes, sir. लेकिन यहां पे क्या है? मार्कर मेड ऑफ व्हाट? प्लास्टिक. ये splitting हुआ. अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखू ऑस्ट्रेलियन डैश, लिख दिया मैंने. तो क्या ऑस्ट्रेलियन के लिए आपके पास कोई सिनोनिम तो नहीं है ना? इट्स अ प्रॉपर नाउन. Yes, Yes, sir. sir. अब वहां पे जाके ये अगर वो वहां पे ये आ जाए, टीन एजर्स ऑफ Of ऑस्ट्रेलिया, Australia. तो अब ये क्या हुआ? तो इसमें जवाब क्या आ सकता है? ऑस्ट्रेलियन Teenagers. वर्ड Australian टीनेजर्स. teenagers. तो गिव्स यू एग्जैक्टली द Teenagers. सेम मीनिंग. लेकिन क्यों? Yes, sir. क्योंकि Yes, हमारे sir. पास इस वर्ड के लिए जो कॉलोकेट कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास सिनोनिम नहीं है. जब सिनोनिम ना हो तो वहां पे ये जो रूल अप्लाई करेंगे, रूल दे वांट टू अप्लाई देयर, दैट विल बी स्ट्रेट अवे व्हाट? दैट विल बी रीअरेंजिंग रूल. Rearranging method. इज दिस क्लियर नाउ? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे Yes, लिखता sir. हूं, लेट मी राइट अनदर. फॉर एग्जांपल डैश बीट्स, मैंने यहां पे लिख दिया. और या मैं लिखता हूं यहां पे स्टोन डैश. अब मुझे बताइए स्टोन के लिए कोई हमारे पास वो है, सिनोनिम है? नहीं है ना. No, sir. तो व्हाट वी कैन दे वांट टू राइट, पीपल यूज फॉर एग्जांपल बीड्स मेड ऑफ स्टोन. Stones. तो क्या जवाब हो सकता है? Stone. स्टोन व्हाट? लिख Beads. सकते हैं. Beads. Beads. Excellent. Beads. This is the rule. This is the strategy you can apply here. अब Yes, जैसे sir. यहां पे देखिए, Yes. they have written what? Bed. DNA analysis of bed dash. तो bed dash, DNA analysis of bed. तो बेड की किस चीज को, डीएनए को एनालाइज किया तो बेड से रिलेटेड है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हिच पैसेज दे हैव टेकन इट. क्विकली सर्च करें कि पहले पैराग्राफ में है, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है ना. Yes, sir. और डीएनए को देखे, जहां पे आपको डीएनए जल्दी से नजर आए. आपके नजर पे है कहीं पे डीएनए? पहले पैराग्राफ में है. बेड नीचे लिखा था बेड. अच्छा. ये वाला बेड कॉम्प्राइज. अच्छा, और डीएनए भी देख ले, because the topic is about bed, so we are more related to what? DNA. जल्दी से डीएनए को भी देख ले.
है हमारे पास Yes, यहाँ sir, पे the last डीएनए। one. Yes, sir. ये Yes, नीचे sir. Yes, sir. The Good. next use DNA So barcoding. they next used DNA barcoding technique to analyze what? Droppings collecting from beds at the different sites. तो क्या जवाब इसमें आ सकते हैं? जल्दी से बोले मुझे। Dropping. I think it's Droppings? dropping. ड्रॉपिंग्स। Dropping. अच्छा हाँ, अब बताएं मुझे। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉपिंग्स है और बेड्स कहा है, यहाँ पे बेड्स है। तो आप मुझे खुद बताएं कि इन लोगों ने कोई सिनोनिम तो अप्लाई नहीं किया। हैव दे अप्लाइड एनी सिनोनिम? No, sir. हाँ No, देखिए, sir. बेड, फॉर एग्जांपल दे कैन से बेड ड्रॉपिंग्स, बेड ड्रॉपिंग्स। Dropping. तो ड्रॉपिंग्स किसका है? बेड का है कि नहीं? Bed का है. Yes, हाँ, sir. और इन लोगों ने क्या है? ड्रॉपिंग्स कलेक्टिंग फ्रॉम बेड्स। Splitting किया हुआ है. हाँ, स्प्लिट किया हुआ है। तो स्ट्रेट अवे वी कैन राइट व्हाट? ड्रॉपिंग्स, Dropping. राइट। अब दूसरे वाला देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, जल्दी बताएं मुझे। सर यहाँ पे कौन सा रूल है? Parallelism. पैरेलल पैरेलल। एक्सेलेंट। कितनी चीजें हमें ऑलरेडी अवेलेबल है? राइस है कि नहीं हमारे पास? Four. Sugar cane Four है, available nuts है। है, and fruits. Four things, four categories are available. The fifth one we are looking for that. And it will follow what? Rules. अब नीचे आ जाए यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे देखिए, if you just focus, है हमारे पास यहाँ पे, एंड में है सर शुगर हाँ एंड में है हमारे पास यहाँ पे क्या है? क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? ये generalized है और राइस, राइट। फिर हमारे पास वहां पे नंबर, दिस इज नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। आप देखिए, वी हैव फाउंड नंबर वन, शुगर कैन भी अवेलेबल था। नंबर टू, फ्रूट्स भी अवेलेबल है। नंबर थ्री, एंड नेक्स्ट क्या चीज अवेलेबल था वहां पर? राइस राइस तो ऑलरेडी ये क्रॉप्स हुआ, Nuts. क्रॉप्स हुआ। जनरलाइजेशन एंड Vegetables. Nuts. नट्स वहां नट पे, बॉर्डर अच्छा लेट मी चेक आउट। Nuts नट्स, नहीं है सर उधर. है Nuts. उधर. सर ये फ्रूट्स Yes, sir. and शुगर nuts. कैन्स फ्रूट्स अच्छा nuts and rice. ओके। तो अब देख ले कि फ्रूट्स भी हमारे पास है, ठीक है, और क्या Nut नट सर भी ये है, ये ना नट नट बॉर्डर ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या चीज यहाँ पे मतलब मिस हुआ? सर ये कॉफी प्लांट. सर ये Borer. Coffee. Borer. सर अच्छा। कॉफी प्लांट्स कॉफी लिखेंगे। Coffee. तो अब मुझे बताइए ये क्यों Sir, यहाँ पे just- मतलब कॉफी क्यों, ये वाला क्यों नहीं? सर प्लांट्स तो मतलब यही तो सबके मसला है, बाकियों के नाम लिए सब गए ना, categories शुगर plants के के नट, हमारे। तो कॉफी भी हम ये हाँ That is the excellent. two words. अच्छा यहाँ पे क्योंकि जवाब ब्रैकेट से मिला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नेम है, सो दिस नेम इज इक्वल टू व्हाट? दिस नेम, राइट। ओके सर. लेकिन जवाब यहाँ पे ब्रैकेट से हमें फ्रूट्स मिला है, तो इसीलिए वी कैन इवन टेक व्हाट? कॉफी फ्रॉम हियर। सो द फिफ्थ वन दैट इज मिसिंग, व्हाट कैन बी द राइट आंसर? कॉफी, कॉफी। ठीक है, वी कैन राइट स्ट्रेट अवे कॉफी। अच्छा अब ये वाला देखिए, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? Black Negation. flies? कौन सा रूल है? Negation. सर इसमें भी पैरेललिज्म है ना, ये पैरेललिज्म है ना, हाँ, एंड yeah, आया है parallelism बीच also. में। पैरेललिज्म। यहाँ पे निगेशन भी है, यहाँ पे मतलब ईटिंग डैश, तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग। तो ये डिजीज किस चीज से स्प्रेड हो रहा है? बाय ईटिंग डैश एंड डैश। तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू नो, बिकॉज ऑफ दोस टू थिंग्स डिजीज हैज बीन स्प्रेड। सो नंबर वन इज ब्लैक फ्लाइज एंड द सेकंड वन वी आर लुकिंग फॉर। तो सबसे पहले आप नीचे आ जाए और यहाँ पे ब्लैक फ्लाइज फाइंड आउट करें कि ब्लैक फ्लाइज कहां पर है। कैन यू फाइंड ब्लैक फ्लाइज? This one, यस sir. सर, एज वेल एज Last. ब्लैक। वेरी गुड। तो उन लोगों ने फिर क्या लिखा है? एज वेल एज। कैन यू सी? यस सर। तो मतलब वहां पे एंड था, यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू पैरेललिज्म, हैव यू फाउंड एंड? ये एंड है। Yes, Yeah. sir. सो नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये ब्लैक फ्लाइज के लिए क्या है? दे हैव डिफाइंड इट, दिस इज द डिफिनीशन। तो यहाँ पे देखिए कि डिजीज और किस चीज से मतलब ये फैला हुआ है? वायरस Elephant. Mosquitoes. मॉस्किटोस। For malaria. देखिए यहाँ पे लोगों ने Black क्या लिखा है? flies for मॉस्किटोस। ये डैश देख रहे हैं आप लोग? डैश, तो डैश का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन, डिफिनीशन। तो ये मुकम्मल डिफिनीशन है इसके लिए,
जैसे यहाँ पे ब्लैक फ्लाइज के लिए इन लोगों ने which ये एक्सप्लेनेशन है ना which, Yes, sir. तो यहाँ पे एज वेल एज कंजंक्शन का काम कर रहा है. इट वर्क्स एज अ कंजंक्शन हेयर. अब देखिए, दिस इज अ कंजंक्शन. ब्लैक फ्लाइज नंबर 1 ऑलरेडी अंडरस्टूड, एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर व्हाट, फॉर ब्लैक फ्लाइज. यहाँ पे नंबर 2 मॉस्किटोज है, और ये पूरे कम पूरे क्या चीज है, मॉस्किटो का है केवल। डेफिनेशन हुआ. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट मॉस्किटोज. अच्छा, यहाँ पे देखिए फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या है. फाइंडिंग्स पे सबसे पहले, यस प्लीज. उधर तो डैश के साथ वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और सर दूसरे में सर कॉमा के बाद एक्सप्लेनेशन दी हुई तो है. ठीक है ना, कामा के साथ which के, ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना. तो ये स्प्रेड रिवर ब्लाइंडनेस क्या चीज, मतलब ये स्प्रेड कर रहे हैं. व्हाट स्प्रेड रिवर ब्लाइंडनेस, ब्लैक फ्लाइज. ब्लैक फ्लाई. ये डेफिनेशन कामास के साथ, और यहाँ पे डैश के साथ हुआ है. सो यू कैन गिव एक्सप्लेनेशन आइदर विद व्हाट, विद डैश और विद रिलेटिव प्रोनाउन. व्हिच क्या है, व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन हियर. ओके सर, समझ रहे. अच्छा जी, अब इसमें देखिए, प्रोवाइड, दे प्रोवाइड व्हाट, फाइंडिंग्स. अच्छा जी, मेरे ख्याल में आपका टाइम खत्म हुआ है, सो लॉग इन अगेन. ओके. ओके.